Very good morning, children. So today we are going to start with the exercise part of the chapter Little Tiger Big Tiger that we have already done in English. So open your workbook. We'll start with the question answers first. First is answer the questions. Where did the mother tiger and her small cub live? The mother tiger and her small cub lived near a river in a shady jungle. Okay, this already we have done. Now you have to write as I am explaining you. The mother tiger and her small cub lived near a river in a shady jungle. Second is, what did the mother tiger do when the sky was dark? So answer will be, when the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. ठीक है, मदर टाइगर क्या करती थी जब स्काई डार्क होता था? शी हंटेड फॉर डियर एंड पिग. What did a tiger cub see? The tiger cub saw a tiny frog. Okay, the tiger cub saw a tiny frog, मतलब little frog. What did the tiger cub do when he saw the frog? The tiger cub chased the frog and caught it. उसने उसको chase किया and उसको फिर पकड़ लिया. Why was the tiger cub frightened? The tiger cub was frightened because he saw a very big tiger near him in the jungle. वो क्यों डर गया था? Because he saw a very big tiger near him in the jungle. Then last is, what did the mother tiger do when she saw the big tiger? When the mother tiger saw the big tiger, मतलब जब mother tiger ने big tiger को देखा, she roared and faced him. Okay, उसने रोर किया जोर से and faced him, so he went away. तो वो टाइगर वहाँ से चला गया. Now we'll start with the next, that is write the correct option A, B, C, D in the box. First is, where did the mother tiger and her small cub live? वो कहाँ रहते थे? Near a river. तो option A. What did the mother tiger hunt when the sky was dark? तो क्या hunt करती थी? Deer and pigs. तो option C. If the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for dawn. मतलब option B. ठीक है, वो डॉन का वेट करती थी ना. नंबर 4 इज, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट? दैट इज अ फ्रॉग. ऑप्शन बी. नेक्स्ट पेज, व्हाट डिड द टाइगर कब सी इंस्टेड ऑफ हिज मदर? तो उसने क्या देखा था? अ बिगर टाइगर, मतलब ऑप्शन सी. व्हेन द टाइगर कब सॉ द बिगर टाइगर ही वाज डैश, मतलब जब उसने देखा तब वो क्या हो गया था? फ्राइटेंड, मतलब डर गया था. तो ऑप्शन डी. When the mother tiger roared loudly, जब उसने जोर से रोर किया, the bigger tiger went away. तो that is option A. When the mother tiger roared, all the animals were dash. तो वो सब भी डरते थे. तो that is frightened. Option B. Then we will go with fill in the blanks. Options दिए हुए हैं. You have to select the correct and write in the blank. The mother tiger and her tiger cub lived near a dash in a shady jungle. Lived near a river. The mother tiger hunted for dash to deer and pigs. One night the tiger cub saw a dash hopping along the ground. तो क्या था वो? Frog. Okay. Then the mother tiger dashed loudly. The mother tiger roared loudly. The bigger tiger's dash eyes glistened. तो ग्रीन आइज, है ना. चलो नंबर 4 इज ट्रू और फॉल्स. द मदर टाइगर एंड द टाइगर कब लिव्ड नियर अ लेक इन द जंगल. तो लेक के बाजू में रहते थे? नो. तो फॉल्स आएगा, वो रिवर के बाजू में रहते थे. द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग्स. दैट इज ट्रू. द टाइगर कब कॉट अ फिश. नो. फॉल्स. उसने क्या पकड़ा था? फ्रॉग. द टाइगर कब वॉज नॉट फ्राइटेंड ऑफ द बिगर टाइगर, मतलब वो नहीं डरा था. दैट इज फॉल्स, क्योंकि वो डर गया था. ऑल एनिमल्स वर फ्राइटेंड ऑफ मदर टाइगर. तो दैट इज ट्रू. देन वील गो विथ राइमिंग वर्ड्स. ब्रदर का, यू कैन राइट अदर वर्ड्स ऑल्सो, बट दैट शुड बी करेक्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ब्रदर का क्या होगा? मदर एंड एनदर. ओके. भाग का हमने लिखा है डार्क एंड शार्क. प्राउड का क्लाउड एंड लाउड. Fever will be liver and reliever. Okay. Found का bound और pound. आप sound भी लिख सकते हो. Other words also you can write. Okay. Then next is
राइट 2 वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम साउंड। अब यहाँ पे उसका स्टार्टिंग साउंड सेम होना चाहिए, जैसे हमने ये पहले किया है। जैसे शॉप है तो शो मतलब SH शो और शाउट। ओके, जस्ट में जैसे JU तो जंक एंड जंप। हग में है तो हस्क एंड हर्ट। ओके, देन ग्रेट है मतलब जैसे GR चाहिए तो ग्रीन एंड ग्राउंड। देन क्वाइट है तो क्वीन एंड क्यू। ओके, नाउ number 7 is read the sentences and write them under the correct pictures। अब यहाँ पे सी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। यहाँ पे सी फर्स्ट वन इज हॉर्स, तो अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। देन अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। अ रैट लिव्स इन अ होल। अ गोट लिव्स इन अ पेन। नेक्स्ट पेज, अ बी लिव्स इन अ हाइव। अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट। अ काउ लिव्स इन अ शेड। ये ब्लैंक्स के वे में भी आ सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पिक्चर्स दी जाएं। जैसे अ काउ लिव्स इन अ डैश तो शेड, और अ डैश लिव्स इन अ डेन तो यू विल राइट लायन। ओके, कीप इन माइंड दैट अ काउ लिव्स इन अ शेड, अ लायन लिव्स इन अ डेन, एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल एंड अ शीप लिव्स इन अ पेन। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब। A pig lives in a sty. A rabbit lives in a burrow. A hen lives in a coop. Okay, this we have done. Number 8 is write the names of young ones of animals and birds. Baby duck is called a duckling. Again, यहाँ options दिए हुए हैं यहाँ पे. A baby hen is called a chick. A baby sheep is called a lamb. A baby dog is called a puppy. A baby cow is called a calf. A baby goat is called a kid. A baby pig is called a piglet. A baby horse is called a foal. A baby lion is called a cub. A baby cat is called a kitten. This all you have already learned in your previous standards. The same is being repeated. Now we'll start with question number 9. Look at the pictures and write the correct words of comparison. Comparison भी हमने पहले first semester में कर लिया है. See, यहाँ पे जैसे हमने कैसे देखा था बिग, ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है ना। तो सेम वे में जैसे फर्स्ट जो है स्पैरो स्मॉलेस्ट, देन स्मॉल, और पैरट विल बी स्मॉलर। ओके, जैसे हमने देखा था हमको किस वे में जाना है, कीप इन माइंड, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो तो राइट द सबसे जो आपको ज़्यादा दिख रहा है उसमें फर्स्ट फिल दैट डिग्री। जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट में सबसे ज़्यादा फैटेस्ट वी हैव गॉट, देन फैटर और फिर फैट। ओके, नंबर 3 विल बी फर्स्ट इज थिनेस्ट, देन थिन, देन थिनर। इसमें वैसे भी यू वोंट गेट द पिक्चर्स। आपको जैसे थिन दिया जाएगा तो यू हैव टू राइट थिनर, थिनेस्ट, या फिर थिनेस्ट दिया जाएगा तो यू विल राइट थिन, थिनर। ओके, तो उस वे में यू विल बी राइटिंग, यू वोंट गेट द पिक्चर्स इन दैट। नंबर 4 टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। नंबर 5 में लॉन्गर, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। जैसे बीच वाला वो लॉन्ग है, उससे ज़्यादा लॉन्गर वो जो फर्स्ट पिक्चर है, एंड सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लास्ट पिक्चर। ओके, सेम वे में यहाँ पे जो मिडल में है वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर फर्स्ट वन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी द लास्ट वन। नंबर 7 में लाइट, ओके, लास्ट वाला पिक्चर लाइट हैगा, उससे लाइटर हो जाएगा लीफ, और उससे भी लाइटेस्ट में आएगा जो फेदर है वो। नंबर 8 इज हैवी, देन हैवियर, देन हैवीएस्ट। नंबर 9 में फर्स्ट स्लो, देन लास्ट वाला स्लोअर है और उससे भी ज़्यादा होता है तो स्लोवेस्ट, दैट इज द मिडल वन। देन नंबर 10 फास्ट, लास्ट वाला फास्टर एंड द मिडल वन विल बी फास्टेस्ट। ओके, now we'll start with the last question, that is question number 10. Fill in the blanks as shown in example. जैसे clean है तो my room is clean, your room is cleaner than my room, Tina's room is the cleanest. तो हमको फॉर्म्स चेंज करके लिखना है। ये भी सेम कंपैरिजन डिग्रीज है। जैसे शॉर्ट, my pencil is short, your pencil is shorter than my pencil, Ketan's pencil is the shortest, short, shorter, shortest का फॉर्म। ओके, नाउ कीप इन माइंड जैसे हम जो ER वाला फॉर्म यूज़ करते हैं
उसमें हम than लगाते हैं, THAN, ओके, शॉर्टर देन। और लास्ट वाला जो है उसमें आगे EST फॉर्म के आगे द आता है हमेशा। दिस विल बी स्टडिंग मोर इन डिटेल इन योर इंग्लिश ग्रामर, ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट वील डू। So just go to the basic in this. My pencil is short, your pencil is shorter than my pencil, Ketan's pencil is the shortest. Now यहाँ पे new, तो Manu's bicycle is new, Nitin's bicycle is newer than Manu's bicycle, and Ketul's bicycle is the newest. Okay? New, newer, newest. जैसे old, तो old का हमको पता है older, oldest. Same way में Kanji bhai is an old man, Devji bhai is older than Kanji bhai, and Manu bhai is the oldest. Young, Mohan is young, Sohan is younger than Mohan, Rohan is the youngest. Weak, Ramji is a weak man, Shyamji is weaker than Ramji, Kanji is the weakest man. Costly, so this book is costly, that book is costlier than this book, the dictionary is the costliest. कॉस्टलीस्ट का फॉर्म COSTLIER, वाई हटाएंगे, और नेक्स्ट वाले में COSTLIEST, ओके। नाउ नेक्स्ट विल गो नंबर 7, चीप, तो चीपर, चीपेस्ट, दिस पेन इज चीप, दैट पेन इज चीपर देन दिस पेन, एंड द ब्लू पेन इज द चीपेस्ट। डर्टी, सेम वे जैसे वाई था तो वाई हटा के IER लगाएंगे और IEST। योर क्लासरूम इज डर्टी, Nitin's classroom is dirtier than your classroom, and Jatin's classroom is the dirtiest. अब ध्यान रखना, आपको EST फॉर्म के आगे द यूज़ करना है, इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ द। और डर्टियर के बाद जैसे दैन हम लगा रहे हैं, तो दैन भी आपको वो उस डिग्री में दैन हमको यूज़ करना है। वर्ड THAN, सी राइट द स्पेलिंग प्रॉपरली, THEN नहीं होना चाहिए, THAN होना चाहिए। देन हॉट, सूरत इज़ अ हॉट सिटी, अहमदाबाद इज हॉटर देन सूरत, एंड राजकोट इज द हॉटेस्ट सिटी। अब यहाँ पे डबल टी आ जाएगा एज पर द स्पेलिंग। 10 इज कोल्ड, मंडे वॉज अ कोल्ड डे, ट्यूजडे वॉज कोल्डर देन मंडे, एंड टुडे इज द कोल्डेस्ट डे। हैप्पी, टीना इज हैप्पी, रीटा इज हैप्पियर देन टीना, सेम वे वाई हटा के IER लगाया। मीना इज द हैप्पीएस्ट गर्ल, तो IEST। लास्ट 12th सैड, तो इसमें मुकुल इज सैड, सुमन इज सैडर देन मुकुल, एंड हर्ष इज द सैडेस्ट बॉय। सेम में यहाँ पे डबल टी पुट करेंगे हम एज पर द स्पेलिंग। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव गॉट ऑल दिस। वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट, दिस लेसन एंड दिस यूनिट ऑल्सो, सो जस्ट कंप्लीट इट इन योर इंग्लिश वर्कबुक एंड देन लर्न इट, ओके।